What's up, everyone? Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 4th of March, and yesterday our markets were closed on account of Holi, but there was a lot of volatility in the global markets because last 48 hours mein, there has been a lot of developments over the ongoing geopolitical tension, and all the world markets, including the crypto markets, saw a massive selling. And yesterday, when our markets were closed, S&P 500 was trading almost 2.5% in red, and our Gift Nifty was indicating that we'd be opening today somewhere around 24,000 levels. On Monday, when we had Nifty's expiry, of course, we opened with a gap down, but there was a dramatic recovery towards the end of the expiry day, and Nifty recovered almost 300 points in less than 30 minutes. And we closed at somewhere around 24,900 levels. So imagine closing at 24,900 and today opening at 24,000 levels, almost like 900 point का एक fall देखने को मिलने वाला था. But fortunately, towards the end of the US markets close, S&P 500 recovered almost all its losses, almost 2% का एक loss को recover कर दिया, and it closed somewhere around 0.8-0.9% in red. And because of that, हमारा जो gap down का intensity जो था वो काफी कम रहा, and we opened somewhere around 24,350 levels. And throughout the day, the markets formed a bottom within the first 15 minutes, and वो जो 15 minute का low है वो कभी breach नहीं हुआ, and throughout the day the markets actually recovered. And at one point, the markets even crossed 24,600 levels, but by the end of the trading day, last 20 minutes में एक 150 point of sell off देखने को मिला है निफ्टी में, and सेंसेक्स में 500 point of sell off देखने को मिला है. And the VIX has again reached 20 levels. I think this is the first time in the last 12 months the VIX has crossed 20, and last trading session maybe 25% एक spike देखने को मिला था VIX पे, and even today there was a 23% spike in VIX, and the long-term option contracts are blowing through the roof. And just to give you perspective, जो अगले week निफ्टी का जो contract expire होने वाला है, it was trading at 400 rupees just on Thursday. But जैसे markets gap down होना शुरू हो गया, and जैसे markets में news आना शुरू हो गया, that same straddle is trading at 600 points. There has been a lot of premiums, and even all these intraday pullbacks and intraday recoveries are not seeming to cool off any of these premiums. So it means that the markets know something, and the markets are jittery, and the markets don't want to take any risk over positional basis. So tomorrow is Sensex weekly expiry, and we are seeing probably one of the highest 1DT closes on Sensex. 1,100 rupees पे Sensex straddle close हो रहा है, but of course it's because of the positional fear. जब markets कल खुलेगा, of course I'm expecting these straddles to open at somewhere around 800 or even lower. So anything above 700 is a decent bet, but at the same time we have to be cognizant of the fact that the markets are moving with a lot of volatility, and this volatility and these moves are coming with a lot of ferocity. So let's get to the terminal and let's see कल के Sensex expiry के लिए क्या trade opportunities हम spot कर सकते हैं. Alright, positional basis पे markets are just reacting to the global news flow, तो technical की ज़्यादा यहाँ पे बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बट आई वांट टू गिव यू फ्यू पॉइंटर्स हियर बिकॉज 2020 से मार्केट्स में हर साल कोई ना कोई इवेंट आ रहा है. 2020 इट वाज कोविड, 2021 इट वाज द रेट कट, 2022 एंड 2023 इट वाज द रशिया एंड यूक्रेन वॉर, 2024 it was the US elections, 2025 it was the tariff and trade deal and whatnot, and now 2026 we are almost at the brink of world war. So there will always be phases, few weeks or few months during every year where the markets will not make sense at all, because हम सोचते हैं कि markets को ऐसे behave करना चाहिए, and even if you try to make sense of how the market should move based on a particular news flow, markets will not make sense at all, and it's completely okay. हम लोग अपना जो ज्ञान है उसको markets के ऊपर थोपना नहीं चाहिए. We should just let the markets play out as they want to. ठीक है, तो this is also a similar kind of a phase. यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो markets have been moving violently, 1,500 point up, down, 1,500 point up, then again 1,500, 2,000 point down. So these are the markets where return of capital is more important than return on capital. तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं बट लॉस मिनिमाइजेशन पे हमको फोकस करना चाहिए. एंड मैं बोलता हूँ कि लाइक जितना कम एक्सपोजर हो सके उतना कम एक्सपोजर आप पोजिशनल पे लेके जाइए. एंड ऑफ कोर्स इंट्राडे में भी हम लोग ट्रेड करना चाहिए तो थोड़ा बहुत पोजीशन साइजिंग थोड़ा कम ही रखना चाहिए. तो सिंस दिस पॉइंट यहाँ पे जब मार्केट ने थोड़ा वोलेटिलिटी दिखाना चालू किया, हैव बीन टेलिंग यू पोजीशन साइजिंग 25% या 30% के आसपास ही रखो, बिकॉज it's not that you'll not make money, but when the position goes against you on a higher size, the probability of you breaking your discipline and going off your plan goes up significantly. So that is why थोड़ा पोजीशन साइज कम रखना चाहिए. एंड ऑल्सो मार्केट्स ने क्या कर रहा है,
थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट्स एक तरफ का ट्रेंड दिखाता है, बट ऑन द हायर टाइम फ्रेम मार्केट्स का जो ट्रेंड है तो उल्टा होता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, एक कॉन्फ्लुएंस जो होता है, हायर टाइम फ्रेम में भी हम लोग ट्रेंड के साइड पे रहना चाहिए और लोअर टाइम फ्रेम पे भी हम लोग ट्रेंड के साइड रहना चाहिए, ये थोड़ा मुश्किल होता है। सो इफ आई गो बैक टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्केट्स ने यहाँ पे जो एक ट्रेंड दिखाया, तो दिस क्लियरली लुक लाइक मार्केट्स ने एक गैप अप दिखाने वाला है, बट सडनली देयर वाज अ ह्यूज गैप डाउन। एंड अगेन टुडे द मार्केट्स हैव बीन showing a good trend on an intraday basis to the upside, but there is a very good possibility that again when we open tomorrow we might be opening with a gap down, even breaching this low. We don't know because the markets are reacting purely to the news flow. तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टेक्निकल की बातें नहीं करना चाहिए, बट ऑफकोर्स यहाँ पे ऑफकोर्स दिस लो एक्टेड एज सम सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस एंड वहाँ से मार्केट में यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने को मिला, बट दिस हैपेंड ऑलमोस्ट एट द फैग एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कैपिटलाइज भी नहीं कर पाते। तो टुमारो इज सेंसेक्स एक्सपायरी एंड आज सेंसेक्स का 1 DTE था, एंड ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, तो अगर मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन दिखता है तो ऑब्वियसली प्रीमियम जो स्पाइक होता है, तो कल 1050 के आसपास स्ट्रैडल क्लोज हुआ था एंड आज ऑलमोस्ट 1300 के आसपास स्ट्रैडल ओपन हुआ, एंड उसके बाद मार्केट्स ने थोड़ा बहुत स्ट्रैडल में कूल ऑफ देखने को मिला, ऑलमोस्ट एक 200 पॉइंट्स, एंड अगेन स्पाइक हुआ अगेन। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ एराटिक बिहेवियर फ्रॉम द स्ट्रैडल्स। आज मैंने भी ट्रेड लिया, बट देयर वाज नॉट मच मीनिंगफुल गेन्स दैट आई कुड मेक टुडे। सो टुमारो ऑल्सो आज स्ट्रैडल जो क्लोज हुआ है 1100 के आसपास जो क्लोज हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल एक 200 पॉइंट्स का क्रश तो देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर मार्केट विथ माइनर गैप अप और गैप डाउन या फ्लैट खुलता है तो। बट अगर मार्केट 500 प्लस अगर गैप अप के साथ या 500 प्लस पॉइंट्स गैप डाउन के साथ अगर खुलता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग द स्ट्रैडल टू होल्ड अबाउट 1000 पॉइंट्स, बिकॉज मार्केट्स में अभी जो एक लॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो दिख रहा है, दैट इज समवेयर अराउंड 80,700 लेवल्स एंड 78,400 लेवल्स, तो ऑलमोस्ट एक 2000 पॉइंट्स का एक लॉजिकल एक रेंज देखने को मिल रहा है। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट टुमारो इज अ वीकली एक्सपायरी, एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज देयर विल बी पीपल who would want to move the markets in their particular way and they'd build a lot of long gamma positions, and उसके हिसाब से मार्केट्स को थोड़ा नचा भी सकते हैं। एंड द प्रीवियस निफ्टीज एक्सपायरी, राइट, लाइक निफ्टी का एक्सपायरी जो था, जो till 2 o'clock it was quite manageable, it was giving a lot of money for the option writers and short gamma traders, but this spike was completely out of the syllabus and it caught almost everyone, practically every single possible trader that I know of, they were all caught off guard in this up move। तो कल भी ऐसे मूव्स को हम एक्सपेक्ट करना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो वेल एंड गुड, हम लोग थोड़ा बहुत पैसे एक्स्ट्रा बना लेते हैं, बट आई वुड रिकमेंड दैट लेट्स बी वॉचफुल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ मूव्स। तो अगेन कल अगर स्ट्रैडल 800 के नीचे खुलता है तो देन फर्स्ट टेक शॉर्ट गामा ट्रेड्स डेफिनेटली इज अ बिग नो। अगर 1000 के ऊपर खुलता है तो देन डेफिनेटली वी कैन यूज द स्क्यूज, थोड़ा ओटीएम से हम लोग शुरू करके थोड़ा बहुत वापस मतलब मार्केट्स के पास आ सकता है एज द डे स्टार्ट्स टू अनफोल्ड। एंड अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर ट्रेड्स की बात करें तो ऑफकोर्स वी हैव अ लॉट ऑफ प्राइस एक्शन पॉइंट्स टुमारो। यहाँ पे जो ये जो लेवल है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट, एंड यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन लेवल दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट, एंड एट द सेम टाइम आज का जो क्लोज है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट। तो अगर कल मार्केट अगर सेलर्स की एक्सपायरी होगी या बायर्स की एक्सपायरी होगी, इसके बेसिस पे डिपेंड करेगा तो कौन सा रेंज मार्केट्स पकड़ने वाला है। तो अगर मार्केट्स एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलता है, एज यूजुअल देयर इज नथिंग मच टू थिंक अबाउट, लेट्स वेट फॉर द 30 मिनट्स ऑफ प्राइस एक्शन, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का एक प्राइस एक्शन को वेट करेंगे। लेट द मार्केट्स फॉर्म व्हाट आई कॉल द इनिशियल बैलेंस। तो इनिशियल बैलेंस का रेंज को हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर इनिशियल बैलेंस बहुत वाइड बन जाता है तो देन उसका बॉर्डर्स को हम लोग डे रेंज मान के उसको नॉन डायरेक्शनल तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर इनिशियल बैलेंस छोट बनता है तो देन उसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन को हम लोग ट्रेड करना चाहिए डायरेक्शनली। सो डिपेंडिंग अपॉन वेयर द मार्केट ओपन्स वी हैव टू फॉर्म आवर ट्रेड्स। एंड यस, मार्केट्स में काफ़ी अच्छा प्रीमियम्स है, तो इफ़ यू कैन टेक सम अमाउंट ऑफ रिस्क यू विल बी रिवॉर्डेड प्रोपोर्शनली, बट एट द सेम टाइम वो जो रिस्क है वो ब्लाइंड रिस्क नहीं होना चाहिए, तुक्का नहीं होना चाहिए। वेट फॉर द मार्केट्स विल डेफिनेटली कम टू योर लेवल्स। तो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, 80,400 80,500 लेवल्स के आसपास आता है, तो देन इट विल गिव अस अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन। एक जस्ट 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग 1:3 का भी ट्रेड्स हम लोग प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुलता है तो। बट अगर मार्केट आज का रेंज में अगर खुलता है तो देन आज का जो लो है एंड आज का जो हाई है, दिस विल एक्ट एज सम सॉर्ट ऑफ अ फ्लोर एंड सीलिंग फॉर टुमारो। देन हम लोगों को वेट करना पड़ेगा
इस रेंज में भी मार्केट कौन सा रेंज को चूज करेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक रेंज दिख रहा है, दिस इज लाइक क्वाइट अ बिग रेंज बिकॉज 78,500 एंड 79,500 1000 पॉइंट का रेंज दिख रहा है. तो यस, दिस रेंज माइट मेक सेंस इफ द स्ट्रैडल्स ओपन एट 1000 रुपीज. तो देन अगर हम लोगों को 79,000 के आसपास अगर मार्केट खुलेगा फ्लैट एंड स्ट्रैडल 800 900 या 900 के प्लस अगर स्ट्रैडल्स देखने को मिलता है, तो देन इवन दिस रेंज मेक सेंस. बट मान लो अगर स्ट्रैडल फर्स्ट 40 मिनट्स के पास पहले या फर्स्ट 1 आवर के पहले 700 या 600 के नीचे आ जाता है, देन वी हैव टू अगेन वेट फॉर द मार्केट्स टू पिक अ रेंज. तो वो रेंज ये हो सकता है कि अगर दिस इज द केस, अगेन आई एम रिआइटरेटिंग, दिस इज द केस इफ द मार्केट ओपन्स इन दिस रेंज, तो हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट रेंज ए में ट्रेड करना चालू करेगा या रेंज बी में ट्रेड करना चालू करेगा विस प्रीमियम्स, कितना प्रीमियम्स है. बट अगर मार्केट कल 10 o'clock के पहले इस लो को अगर तोड़ता है, तो देन एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू गो फर्दर डाउन. एंड यहाँ पे हम लोगों को मीन रिवर्शन ट्रेड्स लेना है, तो देन कॉल रेशियोज के साइड पे हमको ट्रेड लेना पड़ेगा. अगर हमको ट्रेंड फॉलो करना है, तो देन आई वुड सजेस्ट आईटीएम कॉल्स को हम लोग सेल कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस. बट यहाँ पे मैं मीन रिवर्शन ट्रेड ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करने वाला हूँ बिकॉज जो लार्जेस्ट टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो बेरिश है, जो न्यूज़ है वो भी बेरिश है. सो इट कांट हैपन दैट वो एक ही दिन में या एक ही मीटिंग में सडनली जो वॉर का सिनेरियो है खत्म हो जाएगा. सो मोस्ट प्रोबेबली न्यूज़ के हिसाब से जो मार्केट रिएक्ट करने वाला है वो मोस्टली डाउन साइड ही रिएक्ट करने वाला है. तो इफ यू वांट टू स्टे आउट of the markets, it's completely fine. And probably that's also a prudent decision at this point of time. अगर आप लोग if you're not good at risk management and if you're not good at handling these kinds of uncertainties, then probably you should be staying away from the markets. But अगर हमको price action के बेस पे ट्रेड करना ही है, because in the end we all agree that भाव भगवान से, चाहे कुछ भी न्यूज़ फ्लो हो, चाहे कुछ भी ग्लोबल सिनेरियो हो, भाव भगवान से. तो अगर हमको प्राइस के बेसिस पे ट्रेड करना है, तो अगर 10 o'clock के पहले मार्केट इस लो को तोड़ता है, तो देन विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड बाय सेलिंग द कॉल्स. एंड अगर मार्केट 500 या 600 पॉइंट्स इंट्राडे में ट्रैवल करके यहाँ पे आता है, तो देन विल वेट फॉर सम पैटर्न्स ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न. एंड यहाँ पे हम लोग एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग एक रिवर्सल को ट्रेड करने के लिए ट्राई कर सकते हैं. बट अगेन माइंड यू, इस ट्रेड पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है, बट योर रिस्क रिवॉर्ड विल बी प्रेटी गुड. तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस देना नहीं पसंद करते हैं. एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज योर होल्डिंग पावर, देन गो फॉर डेबिट कॉल रेशियोज. डेबिट कॉल रेशियोज को हम लोग ट्राई कर सकते हैं. OTM2 को हम लोग 1 स्ट्राइक बाई करना है, OTM2 को +1, OTM2 को 1 स्ट्राइक, आई मीन 1 क्वांटिटी बाई करना है. एंड प्रोबेबली OTM4 को 3 क्वांटिटी सेल कर देना चाहिए. सो समथिंग लाइक दिस. ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप लोग करेंगे तो बेसिकली आपका होल्डिंग पावर इंप्रूव होगा एंड आप ऐसे ऑप्शन प्रीमियम के जो स्पाइक्स में आप चॉप नहीं होंगे. सो अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादातर हम लोग प्लान नहीं कर सकते बिकॉज अगर मार्केट बड़ा अगर गैप अप खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो देन जो भी हमारा जो प्राइस एक्शन पॉइंट्स है, वो जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा. बट इन एनी केस इफ यू ओपन विथ +or-500 पॉइंट्स गैप, देन डेफिनेटली वेट फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स या 45 मिनट्स ऑफ इनिशियल बैलेंस. एंड उस इनिशियल बैलेंस का जो विड्थ है उसके बेसिस पे हमारा जो डे है उसको हम लोग प्लान कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट पोजीशन साइजिंग को थोड़ा कम रखेंगे बिकॉज प्रीमियम ज़्यादा है. कम पोजीशन साइजिंग पे भी आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो बन सकता है इफ द मार्केट्स आर इन फेवर. बट अगर आप हाई पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड करोगे, तो देन इवन अ स्लाइट मूवमेंट अगेंस्ट योर पोजीशन वुड मेक यू सिट ऑन अ ह्यूज MTM लॉसेस. सो दैट्स व्हाई पोजीशन साइजिंग इज द की ड्यूरिंग these kinds of situations. So trade carefully and trade with a good risk management in place. All right, I'll see you after tomorrow's Sensex weekly expiry and good luck for tomorrow's expiry. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.